हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੌਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਟ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਐਂਡ ਅਪਵਰਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 7 ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ 28 ਕਹ ਲਓ ਇਦਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਤੇ ਸਮ ਵੀ ਇਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਸਰਕਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਲ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਰਾਬਰ। ਬਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚ ਕੀ ਆ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਰਾਬਰ। ਸਮਝੇ? ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਫॉर एग्जांपल ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਬਰਾਬਰ। ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ, this distance is equal to this। कोई भी पॉइंट चक लो पैराबोला तो, पैराबोला कलेक्शन ही वो सारे पॉइंट्स दी आ जिन्हां पॉइंट्स दा डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट तो ते एक फिक्स लाइन तो की आ बराबर। this distance is equal to this distance। समझते कर? ये चीज पहला तुहानू क्लियर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इहदे विचों ही सम आ जांदा कि so set of all point in a plane equal distance from a fixed point and a fixed line in the plane। किसी एक पर्टिकुलर प्लेन दी गल। दूसरी गल, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫੋਕਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਫੋਕਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ। ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਫੋਕਸ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ। ਓਕੇ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਦਾ ਫੋਕਸ। ਇਸ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, that line is called axis of parabola। the last is the point where parabola intersect the axis। ਐਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ 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 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵਰਟੈਕਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਰਟੈਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਟੈਕਸ, ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ this is y axis and this is x axis and this is origin 0 0। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, origin ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਟੈਕਸ ਸਾਰੇ origin ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ, ਅਪਵਰਡ ਐਂਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ। ਦੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ, y² ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਦੀ ਉਲਟ ਕਰਨੀ, y² ਇਕੁਅਲ ਟੂ -4ax। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਚ। ਰਾਈਟ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਲੈਫਟ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦੀ ਅਪਵਰਡ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਿਸ। ਐਕਸਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਇਹੀ ਆ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਦੀ ਕੇਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ। ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕੀ ਇਹੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹ? y axis की x axis। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ये की है x axis है कि y axis है?
ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है ना, लिखा होया दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यानी कि इस टाइम जेड़ा एक्सिस ऑफ पैराबोला, जेड़ा पैराबोला दा एक्सिस है, किहड़ा एक्स एक्सिस है, ते एक्स एक्सिस ते कौन जीरो हुंदा, y जीरो हुंदा। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला की बनेगी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, यही पैराबोला जो इधर है ना, देखो कितना बनेगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लेफ्ट हैंडेड मर्जा बना के दिखा देनी है। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, कोई फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड दिस इज लाइन जेडी है कि वर्टेक्स है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। हुण भी जेड़ा एक्सिस ऑफ पैराबोला भावें लेफ्ट साइड ते चल गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला है कि किहदे ते आ, एक्स एक्सिस ते ही आ, ते एक्स एक्सिस ते वाई की हुंदा, जीरो हुंदा। क्लियर। सो तुसी अपने दिमाग च ना जो दूसरी चीज नु इमेजिन करना, कुछ भी नहीं, ये चीज चक के तुसी इधर बनाई जानी, बस इन्ना काम करना, इस तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। थर्ड इज वर्टेक्स। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रही हूं ते वर्टेक्स कहते हैगे ने ओरिजिन ते, सो वर्टेक्स के पॉइंट की हो जाएंगे 0 0, भावें जेदे मर्जी ला लो। जद आपां पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच जेडे वर्टेक्स आ ओ ओरिजिन ते हुंदे, ते आपां की लवांगे 0 0। यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस देख रहे हैं, ओके। सो दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि इत्थे एक्स भी 0 आ, वाई भी 0 आ, इत्थे साडे को प्लॉट होया ग्राफ, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। फोकस तक एक पर्टिकुलर कोई दूरी होएगी, लेट्स से मैं अपने को मान ली ए वाली दूरी में कितनी मान ली तक ए, तब पॉइंट की हो जाएंगे a0। वाई इज a0 क्योंकि एक्स के पॉइंट पे है ना, एक्स एक्सिस ते एक्स एक्सिस ते वाई का पॉइंट तक ही होएगा, 0 ही होएगा। सो फोकस की हो जाएंगे a0। इन्ना भी तुहानू पता, जे ए दूरी ए है तो ये भी दूरी की होएगी ए ही होएगी, क्योंकि पैराबोला ते जेड़ा भी पॉइंट होएगा ओदी एक्सिस तक दी, फोकस तक दी दूरी ते डायरेक्ट्रिक्स तक दी दूरी की हुंदी बराबर हुंदी सी। यही पढ़िया कि पैराबोला हुंदा ही कि उना पॉइंट्स दा कलेक्शन है जेड़ा हर एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट ते फिक्स लाइन तो ओदा दूरी की होएगी बराबर, यानी कि ए जे दूरी ए है तो ए भी दूरी कितनी होएगी ए ही होएगी। ये गल ध्यान रखना। सो एक्स जो फोकस की गल हुई, फोकस के पॉइंट की आगे ए ते 0, जे मैं यही चीज चक के इधर ही साइड बना देवां तो a0 ही आ, बस पॉइंट की हो जाना, जे इधर नु प्लस ए है इधर की हो जाएगा माइनस ए। मतलब जे यही मैं पैराबोला जेड़ा है इधर नु बना दिता, एदा फोकस कुछ इत्थे होएगा, दिस इज द वर्टेक्स जेडे मैं 0 0 ते लिया, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान ना देखियो, ये फोकस इधर हो गया, इधर नु दूरी एक्स एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स की दूरी की लेगी माइनस ए, तो इधर की हो जाएगा पॉइंट माइनस ए कॉमा 0। सो जो गल आएगी फोकस की लेफ्ट हैंडर दे विच आपां लावांगे माइनस ए 0। क्लियर, पहले तक क्लियर। इधर देखो इक्वेशन ऑफ, इतने ना मेरे को शायद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखन दा भूल गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो, ठीक है, इतने मैं ऐड कर दूंगी, लास्ट के पॉइंट ही ऐड कर दूंगा फिर, क्योंकि ये भी पेपर च पूछ लेना था। डायरेक्ट्रिक्स ध्यान ना देखो, जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन आ ये किस चो पास कर रही है, एक्स एक्सिस तो, एक्स एक्सिस तो पास कर रही कितनी दूरी ते, इधरों देखो, इधर इधर हुण दूरी कितनी हो जाएगी, जो मतलब राइट हैंडेड दे केस च देखो ध्यान नाल, राइट हैंडेड दे केस च ये मेरे को हैगा वाई एक्सिस, इत्थों बन गया एक्स एक्सिस, तो इधर नु नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, यानी इत्थे तक दूरी माइनस ए आ, यानी कि इस केस दे विच डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो उधरले केस च की हो जाएगी फिर, डायरेक्ट्रिक्स उल्ट के इधर चल गया, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ए डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट दे केस च इत्थे तक दूरी की हो गई ए, इधर माइनस ही होगी, डायरेक्ट्रिक्स इधर पॉजिटिव हो गई, तो एक्स इक्वल टू किया जाना, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जी साडे को रह गई सी, ध्यान कर लेना है, कुछ भी नहीं कर, जो तुहानू ये चीज़ां क्लीयर आ कि डायरेक्ट्रिक्स हुण देखो, दिस इज एक्स वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की होगा नेगेटिव, जे फोकस तक दूरी ए या प्लस तो इधर की होगी माइनस ए, तो यदि इक्वेशन की बन गई डायरेक्ट्रिक्स की बन गई एक्स माइनस ए। दूसरे मैं तुहानू दस्सिया ही लेफ्ट च उल्टा हो जाना, इधर चीज उधर चल जानी, उधर इधर आ जानी। नेक्स्ट इज व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की हुंदी, फोकस टू एक लाइन पास कर दी है जी पैराबोला नु दो जगह ते इंटरसेक्ट करती है, क्लियर। व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम, जी फोकस टू जाती हुई लाइन पैराबोला नु दो जगह ते कट करे, दैट इज लेटेस्ट रेक्टम। एदी लेंथ ऑलवेज इक्वल टू 4a, कांस्टेंट वैल्यू हुंदी है एदी कितनी आंदी 4a, याद रखनी तुसीं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आंदी 4a। इक्वेशन बनाओ एदी, एक ए चो पास कर रही है जी, ऑब्वियसली ये फोकस चो पास कर रही है, फोकस चो पास करी कितनी दूरी ते पास करी, ए दूरी ते की हो जाएगी इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए।
दूसरा जो हो जाएगा फिर की हो जाएगी ਉਹਦੇ इधर हो जानी x इक्वल टू माइनस ए, मतलब जो लेफ्ट हैंडेड होगा वो उल्टा हो जाना माइनस होना। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स से कोई भी चीज जीरो होएगी ना, सो टेंजेंट जो वर्टेक्स से होगा वो की होगा x इक्वल टू 0, इधर भी की होगा x इक्वल टू 0 क्योंकि 0 जो पास करेगा। नेक्स्ट फोकल डिस्टेंस, ये थोड़ा समझने वाला फोकल डिस्टेंस किया, देखो ये समझाना पड़ेगा। ये फोकस है, दिस इज द फोकस, एक फिक्स पॉइंट जेड़ा जिन्हों का फोकस मनिया ही फोकस तो किसी भी पॉइंट तक दा डिस्टेंस दैट इज फोकस डिस्टेंस, लेट मैं पॉइंट मान लिया पी एक्स वाई। हुण इस चीज को ध्यान नाल समझियो, ए पॉइंट तो इस पॉइंट तक दा डिस्टेंस मतलब पैराबोला ते जेड़ा भी पॉइंट है उसदा फोकस तक तो दूरी ते एक फिक्स लाइन तो दूरी हमेशा की हुंदी बराबर हुंदी। लेट्स से इस पॉइंट नु मान लिया मैं एस, इनु मान लिया एम, यानी कि पी एस दूरी बराबर की होगी पी एम, इत्थे कट देनी मैं चीज पी एस इक्वल टू की हो जाएगा पी एम, यानी कि ਜਾਂ मैं आ कट लवां या मैं आ वाली चीज कट लवां, वही साडा फोकस डिस्टेंस आ। फोकस तो लेके किसी पॉइंट तक दा डिस्टेंस दैट इज फोकस डिस्टेंस, ते मैनू पता है ओ वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होएगा। हुण ध्यान नाल देखना ए वाली दूरी कितनी है ए, ते ए वाला पॉइंट जे मैं इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लवां, मैं पूरी लेंथ कढनी है, एनी लेंथ तो मैनू पता लग गई ए, इत्थे तक दूरी कितनी हो जाएगी x ही हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट आप सीधे लिख देना 0 ए हैगा ओरिजिन, ओरिजिन तो लेके x तक दूरी x होनी है, y तक y होनी है, इसलिए मैंने x y लिखा। क्लियर है ना इन्नी गल। सो ਇੱਥੇ तक दूरी कितनी सी ए मैं पता करना सी, क्योंकि ए दे बराबर सी फोकस से, फोकस तो लेके इस पॉइंट तक दे डिस्टेंस ए बराबर होया, ए दूरी होगी ए, ते ए दूरी कितनी होगी x, यानी कि कितना आ गया a प्लस x। सेम दूसरे लिखी हो जाएगा a माइनस x, इधर हो जाएगा, ठीक है, मतलब उल्ट का। ठीक है, सब तो पहले इसदा स्क्रीनशॉट ले लो तुसी। नेक्स्ट असीं करांगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। इस लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, देन इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। बस इनू देख लेने हुण, ओदे लिए की हो जाएगा, असी अपवर्ड पैराबोला बनावांगे। देखो कितना इधर करो, पहला असी पैराबोला ड्रॉ कर लेंगे। अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये कोई फिक्स पॉइंट तो डिस्टेंस सारे पॉइंट्स का बराबर होएगा, एक फिक्स लाइन तो बराबर होएगा। ये फोकस हो गया, एक हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ते ए फोकस जो जांदी हुई लाइन जेडी डायरेक्ट्रिक्स नु परपेंडिकुलर कटदी है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। भी पता सारियां ना, पहला जो आप पढ़िया डेफिनेशन वो ला लेनी एक्सिस ऑफ पैराबोला। ते जिथे ये एक्सिस जेड़ा है वर्ट पैराबोला एक्सिस नु कट करदा उन्हें की बोलदे वर्टेक्स। ते तुहानू पता स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साडा ओरिजिन, यानी कि ये हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्योंकि ये चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी, उस तो बिना इक्वेशंस नहीं बनदियां। जिन्हों ये चीजें ऊपर वाली क्लियर हो गई है ना सारियां, ਉਹਦੇ लिए कुछ औखा नहीं। अपवर्ड है इदां डाउनवर्ड बना लेना, ਆਪਾਂ डाउनवर्ड च नीचे हो जाना, डायरेक्टली ऊपर चल जाना। फोकस तक की दूरी कितनी लईदी ਆਪਾਂ a, अपने को ए लईदी ना, बट y ते हुण की हो जाएगा 0,a, क्योंकि x y एक्सिस ते फोकस पे आ, फोकस साडा y एक्सिस ते, ਉੱਥੇ x ਦਾ पॉइंट की होएगा 0 होएगा। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, अपवर्ड ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x² = 4ay एंड ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x² = -4। एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, कितने पे y, y पे कौन 0 ਹੁੰਦਾ x 0, ठीक है। एक्सिस ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। वर्टेक्स कितने ने ओरिजिन ਤੇ ਪਏ ਨੇ, क्योंकि ਆਪਾਂ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। फोकस, फोकस की है 0a, नीचे जावांगे तो 0,-a हो जाएंगे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, फोकस तक 0 ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਬਣਾਵਾਂਗੀ -a ਹੋ ਜਾਏਗਾ। डायरेक्ट्रिक्स देखो, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ a, ਇੱਧਰ ਵੀ a ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, डायरेक्ट्रिक्स ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y = -a, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ डायरेक्ट्रिक्स ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ y = ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ a। नेक्स्ट इज लेटेस्ट रेक्टम, ऑलवेज इसकी कांस्टेंट लेंथ रहती है 4a। ਹੁਣ लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन देखो, ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ फोकस चो जाती हुई लाइन ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, a ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, y ਦੇ ਵਿੱਚ a ਤੋਂ। तो इक्वेशन की हो जाएगी y = a, तेरी की हो जाएगी नीचे हो चल जाएगा y = -a। जो डाउनवर्ड चल जाएगा तो y = की आ जाएगी -a, क्योंकि तो देखो ना लाइन कितनी दूरी ते पास कर रही है, a ते केड़े एक्सिस तो y तो, ते दी की होगी इक्वेशन y = a। नेक्स्ट टेंजेंट आ वर्टेक्स ते की है 0 0, की हो जाएगा y = 0, y = 0।
ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ a plus x ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ y ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੇ y ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a plus y ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a minus y। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਟੈਕਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਫਿਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, x ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द वीडियो।